पूरा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मेकिंग पनीर। अशद ज़रूरत थी मुझे इस वीडियो की, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है मेकिंग पनीर, होममेड पनीर मेकिंग इन विलेज, ट्रेडिशनल पनीर। से स्टार्ट करते हैं। பசுவம் பாலில பன்னீர் செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புக்கே எல்லாரும் வாங்க. ஆல்வேஸ் வெல்கம் யூ. ஆளை செஞ்சிடாம எல்லாத்தையும் ஊற்றிடுங்க. சிந்தக்கூடாது, ஊற்றணும்னா எப்படி ஒரு சொட்டு வேஸ்ட் பண்ணல. அதான் திரும்ப நல்லா ஊற்றிட்டேன். பாக்ஸிங் கிக் பாக்ஸிங் போயிருக்கீங்களா? வாங்க எடுத்து புளிடா டேய். எதுக்கு நறுக்கிக்கிட்டு அப்படியே உள்ள போட்டோம்னா வெந்து அதுலேயே சாறு வந்துடாதா? அவர் என்ன இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தாரு, முடிஞ்சு சாராக்கிது. ஒரு மூடைனா இதுதான் இல்ல, ஏன்னா இதுதான் இது 9வது மூடை. ஏன்னா ஒரு லாரி வருதான். சம்பட்டை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ பொறுமை ராசா பொறுமை. வடி அங்கே புளிய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும்ல. ஓகே சொல்லிட்டேன். எலுமிச்சம் சாறு அப்படியே திரண்டுக்கிட்டு தெளிவு தண்ணி இருக்குது. நல்லா ரெண்டு மூணு ஊற்று. இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் ஒன்று சேரும். நல்லா குளிக்க விட ஐநாரு குனிஞ்சு நிற்க முடியல, வயசாயிருச்சு. குளுக்கு அப்படிதான் தண்ணி நல்லா வடியா ஊற்று. குளுக்க இன்னும் ஊற்று கரெக்டாக இருக்கா? அப்படி ஊற்றுறேன். ஊற்றி விட்டு நல்லா சுத்து. ஏய் பாத்தியா சுடுதண்ணியா? சுத்தான்ல போதும். போதுண்டா. போதும் வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான். அடுத்து அப்படி சட்டி எடுத்து ஊற்ற முடியாதா? வேணாம், பொறுமையாக ஊற்றுட்டு நம்ம வடியணும்ல. சுத்து கறி பாய். கல்லு கிணத்தை நல்லா நறுக்கு ஏற்றினா தான் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடியும். பட்டாணி எடுத்துக்கிட்டு தானே சொன்னீங்க? இந்த மாதிரி இருக்கா? வெண்ணெய்
இருக்குங்க வெண்ணப்பழம் வெண்ணப்பழம் கிண்டுறா வெண்ணப்பழம் பட்ட வகை நறுக்கின வெங்காயம் நறுக்கின தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கல்லுப்பு அப்படியே வை. இவ்வளோ கூட வருதுடா. நான் அந்த அளவுக்கு தள்ளி விடுறேன். எல்லாம் வாண்டி போடு. நீ தானே நல்லா பெரிய முடிச்சா போட்ட நீ மெதுவா அது சும்மா அடியில் கை வச்சு தண்ணி ஊற்றி விடு கொஞ்சம் உண்டு அப்போதான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஊற்றுனது பத்தாது மழை பெய்யணுண்டா அப்போ தாங்க நாடு செழிக்கும். விவசாயத்துக்கு நல்லது, எல்லாத்துக்குமே மழை நல்லது. நல்லதான் அந்த மாதிரி பண்ணி இருக்க வச்சேன் நான். துண்டு எடுத்து கட்டிட்டேன். இந்த கேப் பட்டாணியை உடச்சி கட்டமாகவே நினைச்சிட்டு கிடக்குறேன். அப்போ டைம் எதுக்கு அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய், பாலாட கட்டி, வெண்ணெய் கட்டி, அரைச்ச மசாலா, கல்லுப்பு, பச்சை பட்டாணி, வண்ண வண்ண குடமிளகாய்,
பாலாட கட்டி पूरा लिपोट लपोट के खा रहे हैं तो पूरे பசுவம்பாலில் நம்மளே பன்னீரை எடுத்து வெண்ணெயில் வதக்கிற மசாலாவில் இந்த பட்டாணி குடமிளகாய் போட்டோன்னா அந்த கமகமன்னு வாசனையோட இந்த சப்பாத்திக்கும் இந்த பன்னீர் பட்டு மசாலாவுக்கும் சுவை சொல்லவா வேணும். வேற லெவல், வேற ரகம்தான். பன்னீர் செஞ்ச பாலாடை கட்டி அருமையான சாப்பாடு இன்னைக்கு சூப்பராக இருக்கு. குடமிளகாலாம் வேற டேஸ்ட்ல இருக்கு, அருமையாக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। इस तरह का व्लॉग मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा। एक तो बहुत बड़े पैमाने पे एक चीज़ बनाई गई, पनीर का सालन, लेकिन किस खूबसूरती से बनाया, किस नफासत से बनाया, किस लास्ट में जब उस खाने का कलर आया ना, मैं तो देख के हैरान हो गया और मुंह में पानी आ गया हमारे। यकीन करें, दिल कर रहा था कि फ़ौरन इसको चखें, क्योंकि एक चीज़ हमारी आँखों के सामने स्टेप बाय स्टेप बनी ना, तो यकीन करें वो लास्ट में हमें रिज़ल्ट चाहिए था कि इसका रिज़ल्ट कैसे आया। अच्छा, मटर पनीर था ये, और मटर पनीर की अक्सर रेसिपीज़ देखती रहती हूँ। मेरा दिल बहुत करता है कि यार मैं बनाऊँ, लेकिन हमारे यहाँ पनीर इस तरीके से ना यूज़ होता है ना मिलता है। चलो, अब तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हम आ गए ना, पनीर बनाने से ही आ गए, वो ज़्यादा अच्छा था। ऐसे में नॉर्मली देखती थी क्यूब्स काटते थे और इस तरीके से इस शेप में काटा करते थे और फिर डाला करते थे। ये ओल्ड एज होम के जो लोगों के लिए बनाया गया है, जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, ज़्यादातर मैंने देखा ज़्यादातर ओल्ड ही लोग थे, तो शायद इस नीयत से बनाया गया, इतनी साफ दिल के साथ बनाया गया कि इसकी शक्ल, जो इसका एक देखकर कलर और शक्ल लग रही थी, वो अपने आप में बहुत 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 ही टेस्टी लग रहा था। मतलब शक्ल को देखकर ही मैं जज कर पाऊंगी कि यार वाकई ये बहुत फ्लेवरेबल होगा, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। अच्छा, सबसे अच्छा तो मुझे वो चीज़ लगती है कि जब केले के ऊपर, बनाना का पत्ते के ऊपर जब खाना खाया जाता है ना, वो अपने आप में इतना खूबसूरत लगती है, वो चीज़ इतना ज़बरदस्त लगती है। रोटी भी उसी में डाली, सालन भी उसी में दिया, और ऐसे भर भर के खा रहे हैं, ऐसे टेस्ट ले रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि तमिलनाडु लग रहा है मुझे, जिस तरीके से सीनियर थे वो, जो बार बार हर चीज़ के बारे में बता रहे थे और बीच बीच में आ रहे थे, और जैसे लहसुन अदरक डालो तो फिर मिर्च डालो, और फिर शिमला मिर्च, मैं हैरान हूँ, 3 कलर्स की होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो बेसिकली मिलती है ग्रीन वाली मिलती है, रेड और येलो बहुत कम अवेल होती है। तो यहाँ पे हमने के वेजिटेबल्स जो यूज़ करी, वेजिटेबल्स जो यूज़ करी, जो कैप्सिकम यूज़ करी, जिस तरीके से मटर वगैरह जो दिख रहे थे, और मुझे उनको देखकर ऐसा लग रहा था बड़े फ्रेश, मसाला जात भी बड़े फ्रेश लग रहे थे और सब्ज़ियाँ भी बड़ी फ्रेश लग रही थी। अच्छा, पनीर के बारे में आप बार बार वीडियो के दौरान कह रहे थे कि मेल्ट नहीं हुआ। पनीर मेल्ट नहीं होता, ठीक है। चीज़ जो होता है ना, जो पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ होता है, तो वो मेल्ट होता है। पनीर जो है वो अपनी शेप में ही रहता है। आप उसको जिस तरीके से कट करोगे, वो सालन में आप पकाओगे भी, फ्राई करो ना करो, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता। सही। अच्छा, सबसे खूबसूरत अंदाज़ इनका बहुत यूनिक, बहुत ही हट के, बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही स्टाइलिश, और लास्ट में जब लोगों को खिलाया गया, और जिस तरीके से मतलब है कि या तो ये इनके लिए डेली बनता होगा, हर दूसरे तीसरे दिन कभी क्या सालन, कभी क्या सालन, या तो इन्हीं के लिए बनता होगा, या फिर इन्होंने स्पेशली बनाया फिर इनको जाके दिया।
या तो बनाने वालों ने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ मतलब अपने हिसाब से बनाई, फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाते होंगे लेकिन बल्क में बना के ओल्ड हाउस वालों को, ओल्ड एज जो होम होते हैं उनको जाके दिया, मुझे लग रहा है बनाते हैं ये या फिर बनाते हैं, शूट कर लिया है। हाँ, या फिर ये बाकायदा डेली बेसिस पे इनके लिए खाना बनता है, तो ये प्रॉपर इसका एक व्लॉग क्योंकि ओल्ड एज होम में डेली बेसिस पे खाना तो बनता है होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये वही लोग थे, उन्होंने शूट कर लिया है। ऐसा ही हो सकता है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक वीडियो, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।